नमस्ते भारत, मैं चिराग किसान बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। आज फिर से चलते हैं बाम्बू के एक नए प्लॉट के अंदर में और मिलते हैं नए मित्र के साथ में जिन्होंने बाम्बू लगाया हुआ है और उनके मुंह से सुनते हैं बाम्बू के बारे में। नमस्ते। નમસ્તે. તમને ગુજરાતી ફાવશે હિન્દી? ગુજરાતી. હા, તો ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ, પછી હું ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશ હિન્દીમાં. તમારું નામ અને આપણે અત્યારે કઈ જગ્યાએ છીએ? મારું નામ મહેન્દ્રસિંહ હેમંતસિંહ જાડેજા, ગામ સણોસરા, તાલુકો ધ્રોલ, જિલ્લો જામનગર. બરાબર છે. તો ધ્રોલ તાલુકાના જે છે આપણે ગામની અંદરમાં અત્યારે ઊભા છીએ. અને તમને બાંબુની જે છે એ પ્રેરણા કેવી રીતે મળી? બાંબુ તમે આજ જે વાવેતર આ કરેલું છે તે ક્યાંથી તમને સ્પાર્ક થયું? આ અવારનવાર એવા વિડીયો હું જોતો એટલે એમાંથી જે આ બીજા બધી મેં ફળ ફૂલ ને બધું કરી લીધું. બરાબર. પણ એમાં કાંઈ સક્સેસ ન ગયા એટલે પછી એમ થયું કે હવે આવી વસ્તુ શું કરવું આની અંદર. ખેતીની અંદર બધે મજૂરથી ને બધી રીતે કંટાળી ગયા હતા સમજ્યા. જી. એટલે પછી આ વિડીયા જોયા એમાંથી મેં અમુક ઘણા બધા એવા વિડીયા જોયા એની અંદરથી મને એમ થયું કે હવે આ વસ્તુ કાંઈક વાવવા જેવી છે અને ભલે થોડુંક ટાઈમ લાગશે પણ કાયમીનો આનો આપણે એનો હલ થાય એ રીતે કીધું આ વાવી. બરાબર. એટલે અમે પછી આ રોપા લઈને આનું વાવેતર કર્યું છે. કેટલા વીઘામાં વાવેતર કરેલું છે આપણે? આ છે મારે ટોટલ 42 વીઘા છે. 42 વીઘામાં વાવેતર કરેલું છે. ઓકે. ટોટલ 7 વેરાયટી છે. બરાબર. અને આ ટુલડા વધારે છે. ઓકે. ન્યૂટન બાઉન્ડ્રી ઉપર ન્યૂટન છે. ન્યૂટન જે અત્યારે બાઉન્ડ્રી આપણે જે જોઈએ છીએ આ ટોટલ બાઉન્ડ્રી જે છે એ ન્યૂટનની બનેલી છે. અને ન્યૂટન વેરાયટી જે છે એ બાઉન્ડ્રી માટે થઈને સૌથી સારામાં સારી છે. ઓમ થોડી રફ એન્ડ ટફ અને જંગલી વેરાયટીની અંદરમાં એનો સમાવેશ થાય છે. એવી જ રીતે બેઝિકલી સૌથી મોટું વાવેતર જે કરેલું છે એ ટુલડાનું કરેલું છે. અત્યારે ઇન્ટરક્રોપમાં જે છે એ મગફળી લીધેલી છે. એમના સિવાય તમે બીજી કઈ કઈ વેરાયટી વાવેલી છે? ટી ઓલિવરી, પોલીમાર્ફા છે, પછી બ્રાન્ડીસી છે, ગ્રીન વલ્ગરિયસ છે. બરાબર છે. તો આ ટાઈપની મિક્સ જે છે એ અલગ અલગ વેરાયટીના તમે અમુક રોપા જે છે એ વાવ્યા. મેજોરિટી જે છે એ ટુલડાનું વાવેતર થયું અને બાઉન્ડ્રીની અંદરમાં ન્યૂટનનું વાવેતર કરેલું છે. બરાબર છે. અને બેઝિકલી જ્યારે વાવેતર કર્યું એ પહેલાં તમને ખ્યાલ હતો કે બાંબુને વેચશું ક્યાં? ના, જરા શું થઈ શકશે? કાંઈ નહીં. પણ હવે અમુક આ વિડીયા જોતા તો એની અંદરથી એવું આપણને જાણવા મળતું કે ભાઈ આનું એક ભવિષ્યમાં કાંઈક આની છે સારું સમજી લો. જી. હા, કારણ કે લાકડાનું આનું જે હવે છે જંગલ તો બધા પૂરા થતા જાય છે. બરાબર છે. એના માટે હવે જે આની છે ચોઈસ આની વધવાની છે, આની જ માંગ રહેવાની છે સમજી લો. જી જી. એના હિસાબે વાવેતર કર્યું છે આપણે. बराबर है. हिंदी के दर्शकों के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. सर ने जब बाम्बू प्लांटेशन किया तब उससे पहले भी उन्होंने खेती में कई चीज़ें अलग अलग की हुई थी. इसी प्लॉट के अंदर में नींबू जो है वो भी उनका 10 साल पुराना लगा हुआ था. वो सबको काट के उसके बाद में लेबर प्रॉब्लम गिने, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े ऐसा गिने, या ऐसी हम चीज़ को गिनती कर ले कि यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो को देखकर उनको ऐसा लगा कि बाम्बू कुछ सही या तो अच्छी चीज़ है तो बाम्बू हम लगा सकते हैं. तो ऐसे करके उन्होंने बाम्बू लगाया है. जबकि बाम्बू के अंदर में वो कहाँ बेचेंगे, क्या होगा, ये भी उनके पास में क्लियर ना होने के बावजूद उनको इतना पता था कि लाइफ के अंदर में और आगे जाने में बाम्बू जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री में या दूसरी जगहों पे काम आ सके ऐसा है. लॉन्ग विज़न को देखते हुए उन्होंने बाम्बू लगाया है. 42 बीघा के अंदर में लगाया हुआ है. बाउंड्री के अंदर में न्यूटन वेराइटी, मेजोरिटी टुल्डा वेराइटी और साथ साथ में ग्रीन वल्गरियस, पोलीमार्फा, ब्रांडीसी ऐसी मिक्स वेराइटी. इस हिसाब से उन्होंने ये पूरा 42 बीघा का जो खेत है उसको उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है. मैं इनके थ्रू आप सबको कहना चाहूँगा कि आज के दिन में मोरबी के अंदर में पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्री वाले ओपन एग्रीमेंट करने को रेडी है. और ओपन एग्रीमेंट के अंदर में आज जो प्राइस लिखा हुआ है वो प्राइस सिर्फ बताया जाएगा. जिस टाइम पे आपका बिक्री होगा उस टाइम का प्राइस गिना जाएगा. फिर भी ओपन एग्रीमेंट है इसलिए किसान अगर मोरबी नहीं सेलिंग करना चाहता और सेलिंग के लिए कहीं पर भी वो आगे बेचना चाहता है
तो वो कहीं पर भी बेच सके, वैसा ओपन एग्रीमेंट है। तो जिस किसी भी मित्र को माइंड में कोई डाउट आ रहा हो कि कहाँ बेचेंगे, या तो उन्होंने बांस लगा दिया है लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बेचूं कैसे और कहाँ पे, तो वो कभी भी हमारे बाम्बू ग्रोवर चैनल में आके या बाम्बू ग्रोवर के किसी भी सदस्य के साथ में बातचीत करके नंबर ले सकते हैं और यहाँ पर आकर रूबरू जिन किसी को भी एग्रीमेंट बनाना है वो एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, जिसके कारण आपके माइंड को इतना तसल्ली हो जाए कि हमने जो लगाई हुई चीज़ है वो बिकने के लिए रेडी है। उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत है वो टाइम ड्यूरेशन हमको देना पड़ेगा, चाहे वो 48 मंथ है, कोई वैरायटी 5-5.5 साल की होगी, कोई वैरायटी 7 साल की होगी। तो जो भी वैरायटी आप लगा रहे हो निश्चिंत रहिए, बाम्बू के अंदर में बिक्री इजी है, क्योंकि ये केवल एक फैक्ट्री के अंदर में नहीं, अलग अलग काफ़ी फैक्ट्री के अंदर में बिक्री हो सके वैसी वैरायटी है। और सबसे अनुरोध करूँगा कि हो सके तो अपने आसपास में जहाँ कहीं पर भी बाम्बू लगा हुआ है तो वहाँ पे फार्मर से मिलिए, जाइए और तय करिए कि उन्होंने जो लगाया हुआ है उसमें क्या गलतियाँ है, उन्होंने जो की हुई चीज़ है उसमें क्या बेस्ट है। हम कई बार यूट्यूब या दूसरी माध्यमों से अनगिनत बातें सुनते हैं कि 1 एकड़ में इतने टन मटेरियल निकल जाता है या इसके अंदर में से इतने रुपए जो है वो मिल जाएंगे। तो स्वप्न का खेल अलग है, प्रैक्टिकल रियलिटी अलग है। प्रैक्टिकल रियलिटी पे जाइए और यदि आपको लगे कि हाँ मेरे लिए उतना काफ़ी है तो ही बांस लगाइए, और उतना ही लगाइए जितने बांस के हिसाब से आप आगे सर्वाइवल हो पाए। अगर खुद सिर्फ किसानी कर रहे हैं और बांस पे ही निर्भर है आपका पीछे घर और फाइनेंस, तो स्पेशली उस खेती को महत्व दीजिए जो शॉर्ट क्रॉप का है, और शॉर्ट क्रॉप के हिसाब से भी इनकम लीजिए। साथ साथ में सिर्फ बॉर्डर वगैरह करके एनिमल प्रोटेक्शन से पहले समझ लीजिए बांस क्या है। इस तरीके से सुनिश्चित करिए कौन सी वैरायटी कितना लगाना और किस तरीके से उसको बेचना। आइए हमारे साथ मिलते रहिए बाम्बू ग्रोवर के अंदर में, अलग अलग किस्म की चीज़ें आपको दिखाते हैं और बाम्बू के अलग अलग मित्रों से मिलवाते हैं। थैंक यू।